حضرت بہاؤدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے 781ویں عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دربار عالیہ کو غسل دیا اور چادر پوشی کی۔ غسل اور چادر پوشی کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دعا کرائی۔ شاہ محمود قریشی کی کشمیر اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں۔ اس موقع پر ممبر قومی اسمبلی مخدوم زین قریشی، سجادہ نشین چادر والی سرکار پیر سید علی حسین شاہ بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب جاوید اختر انصاری، معروف صنعتکار جلال الدین رومی بھی موجود تھے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں حضرت بہاؤدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے 781ویں عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دربار عالیہ کو غسل دیا اور چادر پوشی کی۔ غسل اور چادر پوشی کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دعا کروائی۔ حضرت بہاؤدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا 781واں عرس عظیم روحانی پیشوا شیخ اسلام حضرت غوث بہاؤدین ذکریہ سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے 781ویں سالانہ عرس کے موقع پر قومی ذکریہ کانفرنس کا انعقاد۔ ذکریہ کانفرنس میں ہزاروں کی تعداد میں زائرین نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نشست سے خطاب بھی کیا۔ شاہ محمود قریشی نے لوگوں کو بھائی چارہ، امن اور رواداری کا پیغام دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نشست کے اختتام پر دعا بھی کروائی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے۔ سجادہ نشین چادر والی سرکار پیر سید علی حسین شاہ، ممبر قومی اسمبلی زین قریشی، پیر ظہور حسین قریشی، ایڈمنسٹریٹر اوقاف رانا طارق علی، پی ٹی آئی رہنما شیخ طاہر، سید بابر شاہ، شیخ واجد شوکت کی شرکت۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں حضرت بہاؤدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا 781واں عرس۔ حضرت بہاؤدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے 781ویں عرس میں خواتین زائرین کی بڑی تعداد شریک ہے۔ مزید جان لیتے ہیں سہیرہ طارق سے۔ جی سہیرہ۔ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا 781واں عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ آج عرس کا پہلا روز ہے اور زائرین جو ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں عرس میں شرکت کے لیے دور دراز سے آئے ہیں۔ خاص طور پر سندھ کے علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں زائرین یہاں پر پہنچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر زائرین کے لیے بھرپور انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، کیونکہ 3 روز تک زائرین نے یہیں پر قیام کرنا ہے ملتان میں۔ یہاں پر دربار کے احاطے کے اندر مختلف سرکاری اداروں کی جانب سے جو ہے وہ کیمپ بھی لگائے گئے ہیں۔ محکمہ اوقاف ہیلتھ سروسز کے زیر اہتمام یہاں پر میڈیکل کیمپ جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے یہاں پر کیمپ جو ہے وہ لگایا گیا ہے تاکہ ان کو اگر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے، علاج کی کوئی سہولت چاہیے تو وہ زائرین کو بر وقت فراہم کی جا سکے۔ یہاں پر ان کو مختلف ادویات جو ہیں وہ بھی مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سول ڈیفنس خواتین کی بڑی تعداد شریک ہے۔ سہیرہ طارق، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کے شہر میں ویسٹ مینجمنٹ کا ادارہ قائم ہوئے کئی ماہ گزر گئے، لیکن ادارے کی کارکردگی تاحال تسلی بخش دکھائی نہیں دیتی۔ ویسٹ مینجمنٹ کے سی ای او سمیع اللہ فاروق کے کئی روز سے چھٹی پر ہیں، جبکہ ادارے میں عملہ ٹھنڈی مشین والے دفاتر میں کھابے کر رہا ہے۔ سائلین دفاتر کے باہر شکایات کے لیے کئی گھنٹے انتظار میں ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں محسن الملک سے۔ جی محسن۔ ڈیرہ غازی خان سردار عثمان بزدار کا علاقہ ہے۔ یہاں پر 2 مہینے پہلے ویسٹ مینجمنٹ کا ادارہ بنا تھا، جیسے کہ عاشر نے آپ کو بتایا کہ جگہ جگہ شہر میں گندگی ہے اس وقت، اور گندگی کو صاف کرنے والا اس وقت ویسٹ مینجمنٹ کا میں آفس کے اندر ہوں۔ نہ تو 1 ماہ سے یہاں پر جو ویسٹ مینجمنٹ کے ایم ڈی ہیں سمیع اللہ فاروق، جن کے پاس اضافی چارج ہے، وہ ہیں، اور اس وقت جو آفیسز کے اندر لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اندر نہیں آنا۔ ہاں جی، کون ہے جی یہاں ریسپانسبل؟ ہو از دا ریسپانسبل؟ کون بولے گا؟ آپ ہیں جی؟ پورا شہر گندگی میں اس وقت اٹا ہوا ہے، آپ یہاں پہ کھانے کھا رہے ہیں۔ مینیجر آپریشنز ہیں، آپ ان سے کرنی بات۔ کون ہے جی مینیجر آپریشن؟ آپ ہیں؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جی باہر ٹھہر جائیں، آپ موقف نہیں دے رہے ہیں۔ کتنی دیر سے ہم باہر ٹھہرے ہیں؟ ہاں، کون سے موقف چاہیے آپ؟ سارے شہر میں گندگی ہے، گندگی صاف کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور ٹھیک ہے۔ سمیع اللہ صاحب کدھر ہیں؟ سمیع صاحب ابھی لیو پہ ہیں۔ کتنے دن سے لیو پہ ہیں؟ 2 دن سے ہیں۔ 2 دن سے نہیں ہے، پچھلے کئی ہفتوں سے لیو پہ ہیں۔ ان کا بیٹا بھی ہوا تھا پیدا، جی، وہ لاہور گئے ہوئے تھے۔ جی، آپ بتائیں کتنا عرصے سے وہ لیو پہ ہیں؟ نہیں وہ 2 دنوں سے صرف گئے ہیں، وہ یہاں آگے تھے، آفس بھی بیٹھے ہیں، منڈے کو بھی بیٹھے ہیں، منگل بھی بیٹھے ہیں۔ صفائی کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ صفائی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ صفائی کے لیے باقاعدہ کام ہو رہا ہے اور ہماری مشینری لگی ہوئی ہے، رات میں سویپر مشین بھی چلتی ہے۔ سارے شہر کے اندر گند ہے، اس سے پہلے ہم نے دکھایا ہے وہ۔ ہم آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، آپ ساتھ چلیں میرے؟ آپ آ جائیں۔ آپ ابھی چلیں جی، ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ
खाने अभी तक लंच हो रहे हैं और अंदर एसी चल रहा है और हम मौकफ लेने के लिए आए थे। हाँ जी, एसी चल रहा है। ऑफिस में ब्रेक का टाइम है, लंच का टाइम है, ये ऑफिशियल है, हमें अलाउ कर सकते हैं। ऑफिस के अंदर इस जगह पे लंच एरिया नहीं है जहाँ पे अभी नहीं नहीं, एक मिनट, लंच ऑफिस भी स्टैब्लिश कर रहे हैं आपके सामने। लंच एरिया अलग होगा ना। नहीं लेकिन बना। फिर आप मुझसे बात कर रहे हैं ना कि लंच का अभी टाइम नहीं है, बना। फिर लंच एरिया में जाएंगे। ऑफिस की जगह है जी, ऑफिस की जगह फाइलें पड़ी हैं, कंप्यूटर पड़े हैं और कंप्यूटर्स के आगे ये लंच आ रही है। तो इस तरह के मौक़िफ़ दिए जा रहे हैं। काफी देर से मैं बाहर ठहरा था तो अवाम की जो आवाज है वो तो हमने सुनानी है और इस तरफ यहाँ पर देखें जी लंच जो है वो जारी है। वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर कुछ साइलिन भी हमसे बात कर रहे हैं, अंदर लंच हो रहा है, आप बाहर वेट कर रहे हैं। मुझे इंतजार कराया गया, 1 घंटे बाद अभी आने दिए और तकरीबन 1 महीना हो गया मैं कंप्लेन लिखवा रहा हूँ कदीराबाद के हवाले से। तो ये कह रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, सहूलत कुछ भी नहीं दी जा रही हमें। और शहर का देखा कितनी गंदगी है, बिल्कुल हर जगह पे कचरा पड़ा हुआ है। और पहले टीए में कुछ करते थे, जब से ये बनी है WMC तो उस वक्त से ये कुछ भी काम नहीं कर रहे। ठीक है, ये सूरत हाल है। किसी को किसी की फिक्र नहीं है और सिर्फ इस बात पे कि हम पूछने आए हैं कि गंदगी साफ करने वाला कौन है, तो हमें खुद बाहर ठहरा दिया है। तो साइलिन का क्या हाल होगा ये आप खुद समझ। शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल है। मोहसिन उल मुल्क आप तफसीलात बता रहे थे। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान गाजी कॉलोनी के मकीन वेस्ट मैनेजमेंट के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि वेस्ट मैनेजमेंट का अमला गाजी कॉलोनी में गंदगी डाल जाता है, बदबू ताफुन के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं आशिर अशफाक। जी आशिर। डीजी खान गाजी कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ पर कचरा डालने के खिलाफ यहाँ के जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और यहाँ पर कचरा ना डालने का मुतालबा किया जा रहा है। यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। बताइएगा कौन डाल जाता है यहाँ पर कचरा, क्या वजह है? वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं, हमने मना किया है। वो तौफीक कहता है यहाँ मैं कचरा डाल के ऊपर मिट्टी डालूंगा, ये सब झूठ है। 3 दिन का कहा था, आज पूरा महीना हो गया है। हमारे बच्चे बीमार हैं सारे। हाँ, हमारे बच्चे बीमार है। अगर कोई भी जानी नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? आज इनकी मेहरबानी है ये पहुंची है, वरना हम रोड ब्लॉक करने वाले थे। बिल्कुल, ये कचरा डालने के बाद बदबू और ताफुन भी यहाँ पर फैल रहा है। सर आप बताइएगा क्या वजह है, अगर क्यों डाल रहे हैं यहाँ पर? ये बस ये जो TM वाले हैं ये आन के डाल देते हैं। तौफीक लड़का है हनीफ पिताफी का जो चमचा है वो यहाँ डलवा देता है। वो कहता है मैं आज मिट्टी डलवाऊंगा, रोज ये इसी तरह तमाशा, तो कोई मिट्टी नहीं डल रहा है। ये आपकी मेहरबानी है। रूही चैनल वाला हमने कहा था आके मजीद आप चेक कर लें। आपने पूछा नहीं है सर क्यों कचरा डाला जा रहा है और आग भी लगाई जा रही है, धुआं है, खतरनाक धुआं है? भाईजान हमने उन्हें मना किया है, लेकिन हमारे मना करने के बाद कोई तौकीर नामी बंदे का नाम ले रहे हैं। इतनी स्मेल है, छोटे बच्चे हैं, अस्पताल के गंदगी है, इधर डाल रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ है। रात को सोए होते हैं, पंखा लगाइए, आग लगती है, पता नहीं बिस्तर सारा काला हो जाता है। इतनी बिल्कुल, ये यहाँ पर सूरत हाल आप देख सकते हैं। ये गंदगी है, कचरे को आग भी लगी हुई है, धुआं भी गंदा खतरनाक धुआं निकल रहा है। और साथ ही आपको दिखाता चलूं, ये रिहायशी क्वार्टर हैं, घर हैं रिहायशी, यहाँ पर रिहाइश पजीर लोग हैं, साथ ही सारे तमाम रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी घर हैं। बदबू और ताफुन ने यहाँ पर इलाका मकीनों का जीना दुश्वार कर रखा है और मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर इस कचरे को डालने की बजाय यहाँ से कचरे को उठाया जाए ताकि यहाँ के लोगों की जो गाजी कॉलोनी के मकीन सरापा एहतजाज हैं। आशिर अशफाक बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं एक्साइज ऑफिस में स्मार्ट कार्ड ना मिलने का मामला। एक्साइज ऑफिस में स्मार्ट कार्ड की फराहमी का सिलसिला शुरू। एक्साइज ऑफिस में 6000 से ज्यादा स्मार्ट कार्ड पहुंचा दिए गए हैं। मजीद जान लेते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिलाल। एक्साइज ऑफिस के हवाले से बात करें तो स्मार्ट कार्ड के हसूल के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना था सारिफीन को। इस हवाले से स्मार्ट कार्ड की फराहमी न होने के बायस जो सारिफीन थे वो बार बार चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अब अच्छी खबर ये सामने आई है कि स्मार्ट कार्ड की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और इस हवाले से एक्साइज ऑफिस में जो रोज़ाना के हिसाब से अब फराहमी है उसका सिलसिला भी जारी है और अब जिन शहरियों को स्मार्ट कार्ड नहीं मिले वो अब एक्साइज ऑफिस से मिल पाएंगे। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान डिवीजन अब्दुल्ला खान मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। तो स्मार्ट कार्ड के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम था, काफ़ी शॉर्टेज थी, तो अब जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है तो जो सारिफीन है उनको कैसे मालूम हुआ कि उनका स्मार्ट कार्ड एक्साइज ऑफिस में पहुँच चुका है? जी, पहले फैसला हुआ था कि TCS के ज़रिए लाहौर फैसिलिटी से डायरेक्ट जो एड्रेसेस हैं टैक्स पेयर्स के, गाड़ी मालकान के, उनके एड्रेसेस पे TCS के ज़रिए डिलीवरी कराई जाए। लेकिन हाल ही में इसमें चूँकि डिलीवरी में मसाइल पेश आ रहे थे और प्रॉपर डिलीवरी नहीं हो रही थी, तो अवामी शिकायत को पेश नज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया है कि स्मार्ट कार्ड की जो डिलीवरी है वो हम एक्साइज दफातर से देंगे। तो स्मार्ट कार्ड की पहले प्रिंटिंग में इशू आ रहा था,
काफ़ी सारे स्टॉक इकट्ठा हो गया था जो कि आउटस्टैंडिंग स्टॉक था, लेकिन उसकी प्रिंटिंग में अब काफ़ी बेहतरी आ गई है। हमारे पास 10,000 स्मार्ट कार्ड नए रिसीव हो गए हैं। तो एक्साइज ऑफिस में स्मार्ट कार्ड्स पहुंचा दिए गए हैं। बिलाल नियाजी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम स्कूल्स में फोकल पर्सन्स बनाने की हिदायत जारी। फोकल पर्सन्स हर स्कूल अपने स्टाफ से मुंतखब करेगा, जबकि फोकल पर्सन तमाम टीचर्स का डेटा कलेक्ट करेगा। मजीद जान लेते हैं अलिशबा आसिफ से। जलिशबा, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुल्तान के तमाम सरकारी स्कूलों में एक एक फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल ने ही वो फोकल पर्सन जो है डिसाइड करना है, और वो फोकल पर्सन तमाम टीचर्स का डाटा लेगा, कलेक्ट कर अपने पास EMI की सूरत में डाटा कलेक्ट किया जाएगा PDF फॉर्म में, और उसके बाद जो है टीचर्स से राब्ते में रहा जाएगा। कोई भी सिचुएशन होती है, कुछ भी होता है कि टीचर को ऑनलाइन चीज़ें कैसे बतानी है, टीचर को कॉल के ज़रिए पूछना कब है, लोकेशन टीचर की कैसे ट्रेस करनी है, इस तरह टीचर्स की लोकेशन भी फॉलो की जाएगी। और क्लास में भी देखा जा सकेगा वीडियो लिंक के जरिए कि टीचर्स जो है आया SOPs को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये अहकामात इसलिए दिए गए हैं। फोकल पर्सन्स डाटा कलेक्ट करेंगे। अलिशबा आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के दौरे मुल्तान के मौके पर नांडला चौक की हालत बेहतर बनाने के हुक्म पर PHA ने काम मुकम्मल कर लिया है। मजीद जान लेते हैं अली रियाज से। जी अली। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने दौरा जनूबी पंजाब के वक्त जो मुल्तान में कैंप थे, जो रात के जो दौरा किए थे मुल्तान के मुख्तलिफ शहराओं का, तो उसमें सबसे अहम पेशरफ्त ये थी कि उन्होंने मुल्तान के जो नाला चौक के जो मुल्हिका सड़क है उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शन दिए थे। और उस वक्त डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक ने वाज़ेह तौर पर वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ PHA को अहकाम दिए थे कि यहाँ पर सफाई के साथ साथ जो खूबसूरत शजरकारी मुहिम है वो की जाए, और इसी सिलसिले में यहाँ पर पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। PHA की जानिब से अब तक यहाँ पर इस पूरे के पूरे रोड पर 100 के करीब जो दरख्त हैं, मकामी दरख्त लगाए गए हैं। पौधे नहीं लगाए गए बल्कि पौधों की बजाय 10 से 12 फुट जो दरख्त है वो लगाए गए हैं ताकि इनको मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सके। मज़ीद CM की खुसूसी हिदायत के मुताबिक क्या क्या काम जारी है और किस तरह से चीज़ें बेहतर की जा रही है, मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एडमिन फाइनेंस मिस रुबीना साहिब। उनसे पूछते मैम बताइएगा किस तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। CM साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी, कहाँ कहाँ पौधे लग रहे हैं? जी, लास्ट वीक CM साहब का पंजाब में और मुल्तान में विजिट था, जिसपे उन्होंने नॉर्दर्न बाईपास पे प्लांट लगा के इनाग्रेशन की थी। वहाँ हमने 1000 दरख्त पिलकन के लगाए हैं। तो उन्होंने जब इस रोड का नांदला चौक का विजिट किया तो उनकी डायरेक्शन थी कि यहाँ पर भी उसी तरह के बड़े दरख्त लगाए जाएं। उन्होंने परसों हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं। आज हमने तकरीबन 100 जो हैं पौधे दरख्त लगा लिए हैं, बाकी इस साइड पे 50 मजीद लगेंगे। तो टोटल एक साइड पे 150 प्लांट होंगे। अपोजिट साइड पे जहां जहां कैपेसिटी होगी, जगह होगी, वो भी कल तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा हाई कोर्ट रोड पे जो सर्विस लेन है वहां पर भी खुदाई का काम जारी है, और मुल्तान के मेट्रोपॉलिटन के जितने भी दीगर एरियाज हैं और हमारे पार्क्स जहां जहां पर गुंजाइश है वहां पर हम ये तमाम दरख्त लगा रहे हैं। डायरेक्टर एडमिन साहब PHA की जानिब से दरख्त लगा दिए गए हैं। अली रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से बहावलपुर में मुख्तलिफ शोबाजात में काम करने वाले मजदूरों के लिए राशन की तकसीम का एहतमाम किया गया। मजीद जान लेते हैं तलाशारी से। जियात है ऐसे कि पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के जो मरकजी कायदीन हैं, सदर और चेयरमैन, वो आज भावलपुर पहुंचे हैं और जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, उनके लिए राशन जो है वो यहाँ पर तकसीम किया जा रहा है। तो उन्हीं से बात करेंगे। सर फरमाइएगा क्या एक्टिविटी है आज की? मेरा नाम जो है मुख्तार अवान है। पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजदूरों की तंजीम है, जिसका 9.5 लाख मेंबर है। और आज हम जिन मजदूरों को दे रहे हैं ये हमारे मेंबर नहीं हैं, लेकिन मजदूर हैं, क्योंकि इन पर मुल्क का जो है मजदूर का कानून है कोई लागू नहीं होता। ना सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड है, ना UBI में, ना वर्कर वेलफेयर फंड की मुराद करते हैं। लेकिन हमारी तंजीम ने यह फैसला किया कि हम अपने मेंबरों के लिए तो करते हैं, हमने अपने मेंबरों से चंदा इकट्ठा करके जो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपया हमने इकट्ठा किया पूरे पाकिस्तान में। हर शहर में हम टोकन पे 50, 60, 70, 100 तक हम जो है हर शहर में दे रहे हैं कि उन लोगों को जो घरों में काम करती हैं, खवातीन जो अपने घरों में बाहर से कढ़ाई सिलाई का काम करती हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, पल्लेदार और खेतों में मजदूर काम करते हैं, भट्टों पे करते हैं, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, उसके लिए जितने हमारे वसाइल हैं उसके लिए हमारी तंजीम जो है उनके लिए कर रही है। आज पहले हमने मियाँ चन्नू में, खानेवाल में, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान में दे के आए हैं। आज हम भावलपुर में यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर ये खवातीन और जो मर्द हैं इनको हम देने के लिए यहाँ पे आए हैं और आगे इसी तरह जनूबी राशन की तकसीम का एहतमाम किया गया है। अथर लाशारी, बहुत शुक्रिया। जाली दूध और मुजरे खुराक तैयार करने वाले फूड अथॉरिटी के रेडार पर
दूध, स्नैक्स, मसाला जात, सोडा वाटर और दीगर अशियाए खुरनोश की चेकिंग। 6 यूनिट सील, 400 लीटर मसनूई दूध तल्फ, 10 किलो खुश्क पाउडर और मिलावटी मावन मशीनरी बरामद कर ली गई। 1000 किलो स्नैक्स, 970 साशे गुटखा, 111 लीटर सोडा वाटर, 154 किलो मसाले, 250 किलो दाल, 1020 खराब अंडे तल्फ कर दिए गए। 20 किलो पैकिंग, 10 लीटर ऑयल, 100 किलो प्याज, 15 किलो मैदा बरामद कर लिया गया। मुल्तान में हमजा, कराची निमको, शेख टिक्का कबाब को बासी, लोधरा में नस्सू होटल सरबमोहर कर दिया गया। आपको बताएं, कमिश्नर मुल्तान से मरकजी अंजुमन ताजरान कैंट के वफ्द की मुलाकात। अंजुमन ताजरान के वफ्द ने कमिश्नर मुल्तान को मसाइल से आगाह किया। ताजिर बरादरी की कमिश्नर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। तो आपको अपडेट करें हैं कमिश्नर मुल्तान से मरकजी अंजुमन ताजरान कैंट के वफ्द की मुलाकात। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां जिला इंतजामिया पोलियो कतरे पिलाने के लिए मुतहरिक हुई है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल कहते हैं कि आवाम अपने बच्चों और सबको पोलियो कतरे पिलाने में अहम किरदार अदा करे। तो मजीद जान लेते हैं इस हवाले से महमूद जहीर से। जी महमूद। जैसे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खुद पोलियो के कतरे पिलाने के लिए मुतहरिक हुए हैं, उसी तरीके से बहावलपुर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी बच्चों को जगह जगह घर घर जाकर या लारी अड्डे पर जाकर उन्होंने पोलियो कतरे पिलाए हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल साहब ने इनका इस हवाले से क्या कहना है, इन्हीं से जानते हैं। सर, अभी आपने पोलियो कतरे पिलाए लारी अड्डे पर बच्चों के, किस हवाले से, कोई खास इसमें मैसेज देना चाह रहे हैं आवाम को? ये बेसिकली हमारी पोस्ट कोविड जो है दूसरी कैंपेन है। तो जो पिछली कैंपेन थी उसमें हमारे ये जो फिक्स्ड पॉइंट्स थे ये नहीं लगाए गए थे फर्स्ट कैंपेन में, नंबर 1। सेकेंडली, जो पिछली हमारी कैंपेन थी उसमें रिफ्यूजल्स का नंबर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा था। आपकी बहावलपुर सिटी से मोर देन 100 रिफ्यूजल्स आई, जो बड़ी अलार्मिंग थी हम सब के लिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको उसी कैंपेन के दौरान कवर किया। तो इसका पर्पस यही था कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो हेल्थ की टीम के साथ मैदान में मौजूद हो और हम लोगों को अवेयरनेस भी दें और उनको कन्विंस भी करें कि आप रिफ्यूजल्स की बजाय जो टीम्स आपके पास घर पे पहुंच रही हैं उनको सपोर्ट करें, उनके साथ ताउन करें और ताकि हम मिलके इसकी पोलियो से निजात हासिल कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि आपके जो लेवल के ओहदेदार हैं, वो जिस तरीके से आप लोग मुतहर्रिक हैं, कमिश्नर साहब ने भी बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए, मेरा ख्याल है आवाम में एक अच्छा मैसेज आता है कि ये हमें अपने बच्चों को महफूज बनाने के लिए पोलियो कतरे बच्चों को लाजमी पिलाने चाहिए, ना सिर्फ अपने बच्चों को पिलाना चाहिए, दूसरों के बच्चों को। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पिछली कैंपेन हुई थी वो भी बड़ी सक्सेसफुल रही उस हवाले से कि हमारे जो थर्ड पार्टी LQS जिसको कहते हैं, वो 4 यूनियन काउंसिल्स की हुई हमारे डिस्ट्रिक्ट में और वो चारों ने वो टेस्ट पास किया जो WHO का जो स्टैंडर्ड्स है। लेकिन इसकी सेंसिटिविटी ये भी है कि जिस तरह से आपको पता है कि हमारा अहमदपुर ईस्ट में एक थोड़ा सा दो ये यूनिक केस है, 13 साल का बच्चा, लेकिन एक पोलियो पॉजिटिव केस है। तो उसकी वजह से हम बिल्कुल रेड अलर्ट पे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मैक्सिमम एफर्ट हम इसमें डालें। और आवाम के लिए मेरा मैसेज यही होगा कि वो इसमें हमारा बड़ा टाइम वेस्ट होता है। लोग जाते हैं हमारे, वो मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे रिफ्यूज़ करते हैं, फिर वो रिपोर्ट करते हैं, फिर एक दोबारा नया मैकेनिज्म होता है। तो रिफ्यूज़ल्स के लिए जो है काफ़ी उसमें हमारी एनर्जीज वेस्ट होती हैं, सारी टीमें लगती हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये होगी कि ये उनके बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है और ये हमारे लिए दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम अफगानिस्तान के बाद पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क हैं जिसपे अभी तक हम पोलियो को ख़त्म नहीं कर सके। और इसमें जब तक हर कमिश्नर पोलियो मुहिम के हवाले से इन एक्शन है। महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान असिस्टेंट कमिश्नर DG खान मलिक राशिद नेमत का मुख्तलिफ मकामात का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने पोलियो टीमों को चेक किया और टीमों को SOPs पर अमल करने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक राशिद नेमत ने चौक चौरहट्टा, कोट हैबत, गदाई में पोलियो टीमों को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने SOPs को फॉलो करने की भी हिदायत की। बहावलपुर में पोलियो के खिलाफ 5 रोजा मुहिम जारी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मजीद जान लेते हैं इस हवाले से नुमाइंदा रोही से राब्ता करेंगे। आपको बता रहे हैं बहावलपुर में पोलियो के खिलाफ 5 रोजा मुहिम जारी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डॉक्टर औरंगजेब मलिक ने पोलियो टीमों के काम का जायजा लिया। सिटी ऑफ एजुकेशन बुरेवाला का एक और एजाज, मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में भी मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा रोही काशिफ चौधरी से।
एजुकेशन बुरेवाला ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया है। मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में भी सिटी ऑफ एजुकेशन की तालबा ने पहली पोजीशन हासिल की है। होनहार तालबा मेवा शबीर में इंटरमीडिएट के इम्तहान में 1100 में से 1075 नंबर हासिल करके मुल्तान बोर्ड को टॉप किया। इस वक्त मैं मेवा शबीर के साथ मौजूद हूँ, उनसे इस कामयाबी के हवाले से बात करते हैं। जी बेटा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। क्या कहेंगी, क्या राज है आपकी कामयाबी का? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि मुझे इतनी बड़ी कामयाबी से उन्होंने नवाजा। इसके बाद मैं अपने उस्ताज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं मुल्क कौम की खिदमत करना चाहती हूँ अच्छी डॉक्टर बनकर। जी बिल्कुल, नजरिश शबीर ने पोजीशन हासिल की है। बहुत शुक्रिया काशिफ चौधरी, आप बता रहे थे इस हवाले से। अभी आपको बताएं, दुनिया का तेज तरीन बढ़ता हुआ स्मार्टफोन ब्रांड Realme C17 के 90 हर्ट्ज डिस्प्ले से हुआ स्मार्टफोन एक्सपीरियंस मजीद स्मूथ। 6 GB रैम, 128 GB की लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, 18 वॉट फास्ट चार्जर, 13 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा और 5000 mAh की बैटरी के साथ मोबाइल की लॉन्चिंग 4 बजे रोही टीवी पर दिखाई जाएगी। तो आपको बता रहे हैं, दुनिया का तेज तरीन बढ़ता हुआ स्मार्टफोन ब्रांड Realme C17 के 90 हर्ट्ज डिस्प्ले से हुआ स्मार्टफोन एक्सपीरियंस मजीद स्मूथ। 6 GB रैम, 128 GB की लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, 18 वॉट फास्ट चार्ज, 13 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा और 5000 mAh की बैटरी के साथ मोबाइल की लॉन्चिंग 4 बजे रोही टीवी पर दिखाई जाएगी। आपको बता रहे हैं, दुनिया का तेज तरीन बढ़ता हुआ स्मार्टफोन ब्रांड Realme C17 के 90 हर्ट्ज डिस्प्ले से हुआ स्मार्टफोन एक्सपीरियंस मजीद स्मूथ।